باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ایک ابھرتا ہوا ستارہ، ایک بڑا خوبصورت انداز، خطیب ابن خطیب حضرت مولانا تصور اقبال قاسمی صاحب کے صاحبزادے جناب حافظ ریحان معاویہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف الحمد لله الذي جعل أصحاب نبيه كالنجوم وجعل الصحابة وأهل بيت سببا لإشاعة الدين والعلوم والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سلام اس پر جسے معجزات پیغمبر کہتے ہیں، سلام اس پر جسے معجزات پیغمبر کہتے ہیں، سلام اس پر جو دہر میں بن کر جانے بہار آیا، جو آیا تو یکا یک بے قراروں کو قرار آیا، سلام اس پر جو حق کو صداقت کا پیامی ہے، معجزات پیغمبر اس ذات کا اس میں گرامی ہے، معجزات پیغمبر اس ذات کا اس میں گرامی ہے۔ وارثان علوم نبوت و اکابر ملت اساتذہ کرام حضرات علماء کرام، آج کی اس پروقار اور بارونق محفل میں دو عنوان منعقد کیے گئے، دونوں ہی عنوان بہت ہی اہم ہیں، لیکن جب میں نے دونوں عنوانوں کو پڑھا تو میں تصورات کے خیالات میں چلا گیا۔ میں نے کہا ربیع الاول کی آمد ہے، سیرت النبی کو چوز کرنا چاہیے۔ جب میں نے سیرت النبی کو چوز کیا تو پھر میں تصورات کے خیالات میں چلا گیا۔ میں نے کہا سیرت النبی کے تو بے شمار پہلو ہیں، ان میں سے کس کو چوز کرنا چاہیے؟ پھر میں نے معجزات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوز کیا۔ سامعین محترم، سرزمین دنیا پر جب کفر و شرک کی جڑیں مضبوط ہونے لگتی ہیں، فساد اور بد امنی کی فضا ہر سو چھانے لگتی ہے، انسانیت جب خدا کو چھوڑ کر اصنام و اوثان کی پرستش میں لگ جاتی ہے اور انتہائی سوزناک اخلاقی اور سماجی برائیوں میں غوطہ زن ہونے لگتی ہے، تو خالق کائنات کی طرف سے اس کا فرستادہ معجزات پیغمبر واضح اور روشن دلائل و براہین کے ساتھ مبعوث ہوتا ہے، جسے اصطلاحی شریعت میں معجزہ کہتے ہیں۔ علامہ تفتازانی شرح عقائد النسبیہ کے اندر معجزہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں المعجزات ہی امر یظہر علی ید مجدع النبوہ عند تحدی المنکرین عن الاتیان بمثلہ۔ جب سید المرسلین معجزات پیغمبر کی بعثت ظہور پذیر ہوئی تو مشرکین مکہ نے اپنی ہر گرمی کا ثبوت یوں دیا، فقالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا۔ ہم آپ کی رسالت کا اس وقت تک اقرار نہیں کریں گے جب تک ہمارے لیے
जमीन से चश्मा न उभरे, या कभी यूं कहते हैं औ तकून लका जन्नतुम मिन नखीलिन व इनबिन फतुफज्जिर अल-अनहारा खिलालहा तफजीरा। अरबाब फिक्र नजर, मौजज़ात पैगंबर का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? मौजज़ात पैगंबर का सबसे बड़ा मौजज़ा किताबुल्लाह है। कलामुल्लाह ला यखलक़ु अन कसरति रद्द वला यशबअु मिन्हु उलमा वला तनक़ज़ि अजाइबुहु व बहरुल ला साहिल लहु। क़यामत तक पूरी इंसानियत उसकी मिसाल लाने से कासिर है। कुल इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिथ्लि हाज़िल क़ुरानि ला यातून बिमिथ्लिहि वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। मौजज़ात पैगंबर का खत्म नबुव्वत भी मौजज़ा है। मा कान मुहम्मद नबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। और कभी मौजज़ात पैगंबर को बैतुल मुक़द्दस की सैर कराते हुए सातों आसमान और मलाउ आला से भी ऊपर ले जाया गया, जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर चलने का अंदेशा होता है। और सहाबा इकराम का मौजज़ा भी खत्म नबुव्वत का मौजज़ा है। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। शबे तारीख से कह दो कि अपना ठिकाना कर ले कि मौजज़ात पैगंबर उठाए हुए सूरज का अलम आए हैं, कि मौजज़ात पैगंबर उठाए हुए सूरज का अलम आए हैं। अरबाब इल्म व दानिश काज़िल कुज़ात मोहम्मद बिन इब्राहिम मालकी मौजज़ात पैगंबर का मौजज़ात का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, आपका बोलो बरात ज़मीन पर कभी ज़ाहिर नहीं हुआ। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्ज़ि कत्तु लम यक़अ ज़ुबाबु अलैहि कत्तु। आपके बदन मुबारक पर कभी मक्खी नहीं बैठी। आप मख्तून पैदा हुए, तनामु ऐनाहु वला यनामु क़ल्बुहु। आपकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। कान इज़ा तबस्सम फिल-लैल अज़ाल बैत कान इज़ा ज़हिका यतलालहु फिल-जुदूद। जब तबस्सम फरमाते तो काशाना मुबारक चमक उठता और जब हंसते तो दीवारें रोशन होती। हज़रत हसन बिन साबित मंजर कशी करते हुए फरमाते हैं, वो अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। हज़रत अनस के पास एक रुमाल था, जब वो मैला होता तो उसे तंदूर में डाल देते। फायदा अबयज़ु कअन्नहु लबन, सफेद होकर दूध की चमकता। अलगज़ अरबी के शायर ने 40,000 शेर लिखे, लेकिन फिर भी मोहम्मद मुस्तफा, अहमद मुस्तफा, हाथी रहबर, साकी कौसर, गुंबद खजरा, हुसैन के नाना, सहरा के बाबा, अब्दुल्ला के नस्ल जिगर, आमना के दुर्रे यतीम, जनाब मोहम्मद किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ खत्म नहीं हुई तो फिर उसने ये शेर लिखा, तकिया फिक्र रसा, तकिया फिक्र रसा मदा बाकी है। कलाम है आबरपा मदा बाकी है। फरक हुए तमाम मदा बाकी है। तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है। कहता तकिया फिक्र रसा, दिल दिमाग सब कुछ थक गया, पलट कर देखा महबूब तेरी मदा बाकी है। फरक है आबरपा मदा बाकी है। फरक खत्म हो गए, पलट कर देखा महबूब तेरी मदा बाकी है। तमाम उम्र लिखा पलट कर देखा तेरी मदा बाकी है। कायनात बदल गई, तेरी मदा बाकी है। गलियां बदल गई, मदा बाकी है। कोचों में बदल गए, तेरी मदा बाकी है। तकिया फिक्र सा मदा बाकी है। कलम अबरपा मदा बाकी है। फरक तमाम हुए मदा बाकी है। तमाम उम्र लिखा तेरी मदा बाकी है। मैंने शायर से पूछा, शायर तू बता तुझे किसने बताया मुस्तफा कैसे थे, तुझे किसने बताया हुसैन कैसे था, तुझे किसने बताया किसके कंधों पर सवार हुए, तुझे किसने बताया नमाज पढ़ाई, तुझे किसने बताया तवाफ किया, तुझे किसने बताया हज किया। बता तो सही, तकिया फिक्र सा मदा बाकी है। कलम अबरपा मदा बाकी है। फरक तमाम हुए मदा बाकी है। तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है। मैंने कहा बता तो सही। कहते हैं जवाब आता है सहाबा 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 सहाबा। ये पहला
जैश दुनिया में फौज इलाही का, जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था, कि इस लश्कर का अफसर आप काली कमली वाला था, कि इस लश्कर का अफसर आप काली कमली वाला था। रबीउल अव्वल की आमद है। आखिर में मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, मेरे साथ अहद करो कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाने कुर्बान की, उन पर जाने कुर्बान करोगे? वो दीवाने मोहम्मद के, मैं दीवाना सहाबा का, वो मस्ताने मोहम्मद के, मैं मस्ताना सहाबा का। ना छेड़ो हमें, ना छेड़ो हमें, ना छेड़ो हमें, हम सिताए हुए हैं, सरदार फतवे चाल कर लगाए हुए हैं, खिलौना समझ के माफ करो हमें, आखिर हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की सोचों के हुर्मत के फतवे सरदार चाल कर लगाए हुए हैं। न खंजर उठेगी न तलवार तुमसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैज मौजू से वो कभी घबराया नहीं करते, तलातम खैज मौजू से वो कभी घबराया नहीं करते। हर मोड़ पे लिख देंगे कहानी अपनी, हर मोड़ पे लिख देंगे कहानी अपनी, नामों से सहाबा पे लुटा देंगे जवानी अपनी। न रुके थे न रुकेंगे, जो रोकोगे नहीं रुकते कदम उनके, तलक जिनकी शहादत हो, मुजाहिद की शहादत से कभी सरफर्शों के सबर रुकते नहीं। नामों से सहाबा पर सर उठाकर जीने वालों के कभी सर बातिल के सामने झुकते नहीं। फराफिल्ला की तहमीर पता दराज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। बारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।